Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. This is the second lecture of the lab 6 to 12, and this is the part of the experimental pharmacology. We have done with the introduction of this lab, in which we have covered several aspects in which drug discovery is done usually. The first experiment is related to the detection of the activity, determination of the activity of the anti-epileptic drugs by means of inducing the epilepsy in the animal model. Now let's start. What is epilepsy? Epilepsy is a very common disorder, and the main problem related with the epilepsy is the production of several seizures, which are spontaneous seizures which take various forms, and these seizures are basically the results of the several neurological changes with and without characteristic body movements. Initially it was described by the J.H. Jackson. Epilepsy is a significant medical problem, and millions of people in the world is now facing this problem, and currently no anticonvulsion is fully cover the complete epileptic profile of a patient. Several marketed anticonvulsants are available. However, significance unmet the medical need for better anticonvulsion with reduced liability. Normally, the human brain contains several neurons or brain cells, and these cells and neurons communicate with each other through the electrical signals. In a seizure, during a seizure, a person has an abnormal surge of the electric activity in the brain, which lead to the temporary cessation of its normal voluntary activity. In other words, we can say that a seizure is the sudden alteration of the behavior due to a temporary change in the electrical functioning of the brain. The brain continuously generates tiny electrical impulses in an orderly pattern. The pattern is very ordered. However, these impulses are travel along the neurons and the network of the cells in the brain. Throughout the whole body, there are several chemical messengers are also involved, which are neurotransmitters. So what happened in a seizure, in the normal electrical pattern is disrupted by sudden and synchronized burst of the electrical energy. एक sudden burst होता है और जो balance है electrical activity का वो distort हो जाता है, वो vanish off हो जाता है. That briefly affect their consciousness, movements and sensation. तो ये थ्री जो इसकी क्राइटेरिया है कि कॉन्शियसनेस पे इसका इफेक्ट होता है, बॉडी मूवमेंट पे इफेक्ट होता है और सेंसेशंस पे इसका मेनली इफेक्ट होता है. There are two mainly terms are used. One is seizure and one is convulsion. The term seizure means both terms are basically used interchangeably with convulsions, and convulsions are the condition in which the person's body shakes rapidly and uncontrollably. While in seizure, it is not necessary every time that body is moving. There may be an absent seizure in which there are slight symptoms of the epilepsy appear rather than the complete shaking of the body. And now the main target of our lab is to induce the epilepsy, is to produce an epileptic model by means of certain method. हम उसमें कुछ method adopt करेंगे जिसके through हम lab animals के अंदर कोशिश ये करेंगे कि उसमें पहले epilepsy generate करें. जब epilepsy generate करेंगे, then we will give the drug with unknown pharmacological activity, and we suppose that it may have anti-convulsive activity. Depending upon the condition, different types के हमें models बनाने पड़ेंगे और डिफरेंट टाइप की सीजर्स के मॉडल्स बन सकते हैं. लेकिन एक चीज़ और हमें यू मस्ट रिमेंबर दैट the control of the brain is in such a way that if a seizure arises from a specific area of the brain, then the initial symptom of the seizure
ऑफन रिफ्लेक्ट द फंक्शन ऑफ दैट एरिया. जो भी एरिया है जहाँ से सीजर ओरिजिनेट हुआ है वो किसी खास एरिया से होता है. हो सकता है कि द कंप्लीट ब्रेन इज इन्वॉल्व, पूरा ब्रेन इन्वॉल्व हो, इसके ज़रिए पूरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, तो जो कि जर्नलाइज सीजर होगा. इफ़ द सीजर इज़ नॉट जर्नलाइज, इट इज़ लोकलाइज्ड, देन जो एरिया अफेक्टेड है इट विल लीड टू दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स. द राइट हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड द लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी. तो अगर सीजर है, इफ द सीजर स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द ब्रेन इन द एरिया दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट इन द थंब, देन द सीजर बिगिन विद द जर्किंग ऑफ लेफ्ट थंब और राइट हैंड. ये बात समझ में आ रही है कि अगर फॉर एग्जांपल कि राइट साइड का ब्रेन जो है वो लेफ्ट थंब को कंट्रोल करेगा, लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो राइट साइड को कंट्रोल करेगा. अगर राइट साइड में है सीजर अपीयर हुआ है तो फिर लेफ्ट साइड पे जो है वो ज़्यादा सीजर का इफेक्ट आएगा. और जनरलाइज है तो फिर दोनों जो है वो जो भी हैंड एंड लेग्स हैं वो दोनों अफेक्टेड होंगे. What are the causes and the factors which increases the risk of the patient predisposing to the seizures? There are several causes, but the exact cause is still unknown. So we can't say that if the person is normally behaving, it may be possible in the life, it may suffer from this epileptic effect. The epilepsy is basically the recurrent seizures. जैसे कि उसमें बार बार सीजर्स होंगे, एक या दो होना ड्यू टू एनी रीजन, it is not so much problematic. However, if the condition is persists and the body undergo continuous imbalances of these electrical impulse generation, then उसके अंदर बॉडी के अंदर जो है वो एपिलेप्सी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी. अगर हम कॉजेस की बात करें then we have अनदर रीज़न इज़ दी स्ट्रोक. स्ट्रोक में क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई है वो किसी ना किसी एरिया की जो है वो ब्रेन में स्टॉप हो जाएगी. जब मैन द ब्लड सप्लाई इज स्टॉप देन वो एरिया जो है वो डैमेज हो जाएगा. डिपेंडिंग अपॉन द एरिया डैमेजिंग, जिस एरिया को वो ब्रेन एरिया कंट्रोल कर रहा है वहाँ की एक्टिविटी जो है वो हाइपर स्टिमुलेशन में जा सकती है. देन वी हैव द ब्रेन ट्यूमर, द सेम रीज़न. सीवियर हेड इंजरी में भी वो जो एरिया है जो कि डैमेज हुआ है उस डैमेज से जो है वो अगेन एपिलेप्टिक अटैक्स जो है वो हो सकते हैं ड्यू टू एनी ड्रग अब्यूज़ और अल्कोहल मिसयूज़. उस ख़ास तौर पर डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास कैनाबिस वगैरह होते हैं, चर्च वगैरह हैं, उससे भी जो है उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो इन्हांस कर देती है ब्रेन की, और उसमें कुछ परमानेंट डैमेजेस भी हो जाते हैं ब्रेन में, जिसकी वजह से देन द पर्सन में सफ़र फ्रॉम द एपिलेप्सी. इफ देयर इज एन इन्फेक्शन विच इज प्रेजेंट इन द ब्रेन देन इट ऑल्सो लीड टू द एपिलेप्सी. एंड द लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द बर्थ इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज. कि अगर बच्चों में एपिलेप्सी हो रही है इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं हाइपोक्सिक कंडीशन फील हुई थी, प्रोड्यूस हुई थी बॉडी के बेबी के अंदर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज और ड्यूरिंग दी इनिशियल लाइफ स्पैन, स्पेशली जो कि पहला साल होता है लाइफ का, उसके अंदर अगर हाइपोक्सिक उसमें आया है किसी में तो फिर उसकी जो ब्रेन रिटार्डेशन है और ब्रेन डेवलपमेंट पे वो इफेक्ट करेगा, और जब ब्रेन का मसला होगा तो फिर उसका बैलेंस जो है वो लॉस हो जाएगा. देन वी हैव फैक्टर्स. फैक्टर्स ये है कि अब पेशेंट इज़ ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी, उसमें एपिलेप्सी है. अब नॉर्मली जो पेशेंट होता है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिससे अटैक जो है वो ट्रिगर होता है. नॉर्मली द पर्सन के अंदर वो अटैक नहीं होता. अगर उसके अंदर टेंडेंसी आ गई है कि उसके अंदर जो है वो सीजर्स जो है वो इंड्यूस हो जाते हैं, देयर आर सेवरल रीजन्स. इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न जो है वो स्ट्रेस है. इफ़ द पर्सन इज़ इन स्ट्रेसफुल कंडीशन देन इट इज़ मोर लायबल कि उसके अंदर एपिलेप्टिक अटैक आ जाए. नींद, अगर स्लीप डिप्राइवेशन है, फटीग है, लिथार्जी है, बहुत ज़्यादा लेवल्स वर्क कर रहा है पर्सन, देन इट मे ट्रिगर दी एपिलेप्टिक अटैक. अगर फूड सही नहीं है, फीवर है या अब्यूज़ कोई ड्रग यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से उसको अटैक आ जाता है तो देन वो भी इसका इंक्रीज कर देगा रिस्क को. और अगर द पर्सन इज़ नॉट टेकिंग इट्स मेडिकेशन प्रॉपरली, बिकॉज अब क्या होगा कि इफ़ द पर्सन इज़ डायग्नोज्ड विद द एपिलेप्सी then he has to take the anticonvulsant throughout their life.
or at least for 5 years unless and until there is no seizure. उसका जो लाइफ उसमें ये है, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं कि फिर आपको लेनी ही पड़ेंगी चाहे सिम्टम्स हो चाहे सिम्टम्स ना हो. होता क्या है कि जब पेशेंट ये फील करता है कि ही हैज़ नो एपिलेप्टिक अटैक, तो वो क्या करता है कि वो अपनी मेडिसिन लेना छोड़ देता है. पेशेंट कंप्लाइंस डिक्रीज हो जाती है कि ही इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी अटैक, तो उसमें वो अपनी दवाएं छोड़ देते हैं और उस छोड़ने से जो है वो कंडीशन जो है वो फिर वर्सन होती है और फिर उसके बाद वो उसकी जो एफिकेसी है एड्स एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की AEDs की वो फिर बहुत ही ड्रास्टिक जो है वो रिड्यूस हो जाती है. दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम रिलेटेड टू दी एपिलेप्सी. What are the type of seizures? Generally, we have two major types of seizures: generalized seizures, in which the whole brain is involved, and it is mainly characterized by the immediate loss of the consciousness. The major type, जो कि बहुत ही ज़्यादा common है, this is the tonic-clonic seizure, which is the grand mal epilepsy, in which complete muscles are stretching. You can see in the picture in tonic phase there is a rhythmic contraction and relaxation of the baby as seen in this picture, कि जो body muscles हैं वो contract और relax होंगे and there will be a prolonged jerking, and after the completion of attack there will be unconsciousness and there may be prolonged sleep and there may be depression, and the duration of the seizure is about 1 to 2 minutes. Then we have absence seizure, which is also prevalent in the children, and again there is the momentary loss of the consciousness. However, पूरा इसमें बॉडी जो है वो उसमें अनकॉन्शियसनेस में नहीं जाएगी, बल्कि ऐसा होगा कि वो पेशेंट जो है या बेबी जो है वो स्टेयर करेगा और एक जगह वो फोकस हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि वो इन्वायरमेंट से कट ऑफ हो गया, लेकिन बज़ाहिर वो उसमें कॉन्शियसनेस में होगा. Patient freezes and stares in one direction and there is no muscular movement and jerking. Absence है, सीजर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन वो जो है वो फ्रीज हो गया पे. Duration is about half minutes. Then there is atonic seizure, and atonic seizure is basically due to excessive inhibitory discharge, and इसमें रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा होता है. इसमें बिल्कुल जो है वो बॉडी जो है वो बिल्कुल रिजिड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है और इसमें कोई टोन नहीं रहती बॉडी की. जैसे टोनिक क्लोनिक सीजर में तो जर्किंग हो रही है, बहुत तेज़ से झटके ले रहे हैं बेबी या जो भी पेशेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा सीजर्स आ रहे हैं. लेकिन एटॉनिक में सीजर्स तो नहीं आएंगे इस तरह की जर्किंग हो, लेकिन वो बिल्कुल जैसे पत्थर की तरह हो गया है, तो वो एटॉनिक सीजर्स कहलाते हैं. देन वी हैव पार्शल सीजर्स. पार्शल सीजर्स जो है वो बेसिकली दे आर कॉल्ड एज फोकल सीजर्स एज वेल. जनरलाइज सीजर्स में पूरा जो ब्रेन का जो हेमिस्फीयर है वो पूरा इन्वॉल्व है, और इन पार्शल सीजर्स डिस्चार्ज जो है वो लोकली बिगिन होगा. कोई जो डैमेज पार्ट है ब्रेन का वहाँ से जो है वो एकदम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो है वो स्टार्ट होगी, एंड विच मे स्प्रेड टू दी अदर एरियाज ऑफ द ब्रेन. एक तो ये है कि वो वहीं पे रहेगा, सिंपल है, जिस एरिया से हो रहा है उसी एरिया में जो है वो रहेगा और इसमें कोई लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है. एंड द ड्यूरेशन इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, which is half to 1 minute. While in case of complex partial seizure, if it is spread from one region of the brain to the another region, it is the temporal lobe epilepsy. And in this the body is moving, and purposeless movement means कि कोई मसला कोई वो नहीं है, लेकिन वो उसका हाथ हिले जा रहा है या पाँव जो है उसमें कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रही है. तो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में कॉन्शियसनेस तो नहीं ख़त्म हो रही, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है. हाउएवर प्रॉब्लम किस में आ रही है कि प्रॉब्लम ये है कि उसमें मूवमेंट उसकी जो है वो पर्पसलेस है, और अगर कंटिन्यू रहेगी तो फिर वो कन्वर्ट हो सकता है सेकेंडरी जनरलाइज सीजर में. यानी वैसे तो स्टार्ट में तो वो पार्शियल सीजर था, लेकिन वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा जनरलाइज सीजर में, एंड व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू टोनिक क्लोनिक सीजर्स. अच्छा, ये एंड अप भी हो सकता है कि जब ये टोनिक क्लोनिक सीजर्स में यूजुअली होता है कन्वर्ट, देन ये फिर एंड अप होता है ऑन दी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस पे. फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है तो बॉडी रिवर्ट बैक होती है नॉर्मल पे.
दिस इज़ दी पिक्चर। इसमें हम देख सकते हैं जनरलाइज सीजर में दोनों जो है हमारे पास जो ब्रेन एरियाज हैं, हेमिस्फीयर हैं, वो इन्वॉल्व होंगे इन जनरलाइज सीजर एंड देयर मस्ट बी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और कोई वार्निंग नहीं होगी, बिल्कुल सिमेट्रिकल सीजर होगा। दोनों जो हैंड्स हैं और लेग्स हैं उनमें बायलेटरल सिंक्रोनाइजेशन डिस्चार्ज होगा, और इसकी ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो है वो बिल्कुल एक ही जैसी दोनों की शो करेगी। हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं एब्सेंट सीजर, मायो क्लोनिक सीजर्स में सिर्फ जो है वो नेक एंड ट्रंक के मसल्स जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड होंगे। एंड देन वी हैव टोनिक सीजर जिसमें सिर्फ टोन होगी, टोनिक क्लोनिक सीजर्स एंड एटोनिक सीजर वी हैव डिस्कस्ड इट ऑल। देन वी हैव फोकल सीजर्स, इनमें पैराइटल लोब एपिलेप्सी हो सकती है, फ्रंटल लोब हो सकती है, एंड टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी एरिया कौन सा अफेक्टेड है उस हिसाब से ऑसिपिटल पैराइटल लोब सीजर्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, और वैसे हम अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से देखें तो ये जो हमने पीछे डिस्कस किए थे, सिंपल पार्शियल सीजर्स, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर एंड पार्शियली सीजर सेकेंडरी जनरलाइज, ये इसकी एक क्राइटेरिया हो सकता है। How we can differentiate the symptoms of the focal seizure with regarding the generalized seizures? उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन पार्शियल सीजर्स में ज़्यादा मतलब ब्रीफ सी होती है और सेंसेशंस होते हैं, एबनॉर्मल हेड मूवमेंट होती है या आई मूवमेंट्स होती हैं, देयर मे बी आर रिपीटेटिव मूवमेंट्स एंड विजन चेंजेस मे बी देयर पीपल हु हैविंग द सीजर यूजुअली जो स्टार्ट पे है उनका ऑरा जो है उनको सब चीज़ें याद रहती है, लेकिन जो जनरलाइज सीजर होती हैं, जनरलाइज सीजर होता है उसमें जो है वो आपकी जो मेमोरी है वो भी लॉस हो जाती है कि क्या हुआ था। अच्छा, इसके अलावा इसमें ये भी कर सकते हैं कि द पेशेंट कैन परसीव, कैन फील द लाइट एंड कैन फील द स्मेल जस्ट बिफोर अ सीजर बिगिंस, सो द ऑरा इज स्टार्ट ऑफ द abnormal electrical activity of the seizure in the brain. ठीक है, after the attack what happened, different symptoms such as staring, rapid eye blinking or body stiffing may be there, followed by the tiredness बहुत होगी, जब इसमें ख़त्म होगा तो फिर पेशेंट जो है वो हिलना उसके लिए मुश्किल होगा। These are certain drugs जो कि यूजुअली हम देख रहे हैं कि इस वक्त अवेलेबल्स हैं एज एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, AED इसका एब्रीविएशन है। इसमें प्राइमरी जनरलाइज सीजर्स के लिए हमारे पास चॉइसेस हैं जो है वो वैल्प्रोएट है, लैमोट्रिजिन है, टॉपिरामाइड है। पार्शियल सीजर्स के लिए हमारे पास कार्बामेज़ापिन है, फिनाइटोइन है, लैमोट्रिजिन है, वैल्प्रोएट है, ऑक्सोकार्बाजीन है, वैल्प्रोएट है, इथोसुक्सिमाइड है। एंड देन एटिपिकल के लिए हमारे पास लेसर चॉइसेस हैं, वैल्प्रोएट है, लैमोट्रिजिन है, टोपिरामाइड है। अभी भी जो वैल्प्रोएट है वो बेसिकली कैटेगरी डी कैटेगरी में आता है एंड इट हैज सेवरल टाइप ऑफ एडवर्स इफेक्ट एज वेल एज ये प्रेगनेंसी डी कैटेगरी ड्रग है। हाउएवर इट्स स्टिल द फर्स्ट चॉइस क्योंकि इसकी कवरिंग बहुत अच्छी है। इसी तरह फिनाइटोइन की कवरिंग जो है वो पार्शियल सीजर में बहुत अच्छी है, लेकिन उसके भी एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। ओल्ड ड्रग्स हैं और न्यूअर हमारे पास एंटी एपिलेप्टिक्स अवेलेबल हैं, हाउएवर उनकी जो कवरेज है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो सीजर्स को कंट्रोल नहीं करते हैं एंड यूजुअली दे रिक्वायर्ड द कॉम्बिनेशन थेरेपी। स्टार्टअप पे जो है वो सिंगल थेरेपी पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये एंड अप ये होता है कि जो पेशेंट होता है इट हैज़ टू टेक मल्टीपल टाइप ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं ये डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट मैकेनिज्म से जो हाइपर एक्टिविटी है ब्रेन की उसको स्टॉप करते हैं एंड वो हाइपर एक्टिविटी जो है वो फिर नॉर्मली जो है वो एक जो है वो प्रॉपर कवर नहीं कर पाती। तो 2 या 3 हमें एंटी एपिलेप्टिक्स लेने पड़ते हैं। तो जो उसमें जो भी इसका जो कंसल्टेंट डॉक्टर है वो फिर डिसाइड करता है कि पेशेंट को कौन सी देनी है और उसमें कितना ड्यूरेशन रखना है, एक से दूसरे में कितना ट्रांसफ़र होना है। ये एक पूरी गाइडलाइन है जो कि हम अलग से फिर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इसका पार्ट है एपिलेप्सी का कि व्हाट इज एपिलेप्सी। इसमें हमने एपिलेप्सी की टाइप्स एंड इनके सिम्टम्स एंड स्मॉल उसमें जो थोड़ा सा हमने इनका ट्रीटमेंट डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि व्हाट आर दी एनिमल मॉडल्स ऑफ दी सीजर्स, हम लैब में कैसे एनिमल्स के अंदर एपिलेप्सी इंड्यूस करें। थैंक यू।